देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। करगिल विजय दिवस कार्यक्रम के लिए उधमपुर नॉर्दर्न कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी के साथ 25 बाइक पर सवार होकर सेना के जवान उधमपुर से ध्रुवा करगिल राइड नामक राइड की शुरुआत की गई, जो कि उधमपुर से शुरू होकर करगिल वार मेमोरियल द्रास में पहुंचकर समाप्त होगी। वहीं इस ध्रुवा करगिल राइड को सूबेदार संजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौजूद हैं कि कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में पहुंचेंगी या उसमें लिपटकर ध्रुव कारगिल बाइक राइड हमारे पर कर दिया। ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत होगा और इस रैली को फ्लैग ऑफ करने के लिए हमारे भी अब मैं सब पूरा करें। Made by the brave soldiers of the Indian Army are not only recognized but also remembered, so that they continue to inspire the current and the future generations of the country. So therefore, today this effort of ours, this motorcycle rally that we are undertaking, is to remember the fallen heroes during Operation Vijay and also to revive, rekindle and invigorate the spirit of patriotism amongst the youth. On the 7th of July, I had flown over Batra Top in a Sukhoi. That was the day when one of my company commanders, Captain Vikram Batra Paramveer Chakra, had laid down his life. And today, I am undertaking this motorcycle rally to remember all the fallen heroes of the Indian Army who have laid down their life for the nation. My message to the youth of the country is to look beyond the myopic material gains and commit themselves to a greater cause of the greater good of the country and the people of India. It is important for the youth to dream big, to think big, to do big, and to become big. I want to tell them that do not follow a beaten track. Go into the unknown. Make your own path and leave a trail for others to follow. Always, who dares wins. And my message to the citizens of the country is that be at rest assured that the brave soldier of the Indian Army will always stand steadfast in his vigil to protect the nation, even at the cost of making supreme sacrifice and laying down his life without batting an eyelid. You had been leading from the front. That time also you had been leading from the front, and today also you are leading from the front. You will be leading this bikers rally to Kargil. How excited you feel all about this? So I'm very excited. You know, it is the patriotism for the nation and for my profession which is making me do this. So in the end, I want to thank Anupam Thareja, Java Motors, for giving me this idea to lead this rally all the way to Dras and for all the support that he has given us. And my thanks to Ashish Joshi, CEO Java, Ms. Urvashi and Dhruv of Java Motors for all the support. And thanks to all the participants of this ride who are braving it out today. And I'm extremely pleased that today this rally is being flagged off by none other than Subedar
Sanjay Kumar, the Paramveer Chakra of my battalion. What could motivate us more than this? डिस्ट्रिक्ट राजौरी के एएलजी से भी सेना द्वारा करगिल विजय दिवस कार्यक्रम के लिए जावा बाइक रैली की शुरुआत की गई, जिसमें जम्मू व कश्मीर के सैनिक बाइक पर सवार होकर जम्मू कश्मीर से होते हुए करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में पहुंचकर इस राइड को समाप्त करेंगे, जिसको जीओसी 25 इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल राजीव पुरी ने हरी झंडी दिखाकर राजौरी एएलजी ग्राउंड से रवाना किया। सिक्सटीन कोर वाइट नाइट राइडर्स की जो रैली है 15 राइडर्स की, ये सुंदरबनी से शुरू हुई थी और आज हमारा ये फ्लैग ऑफ यहाँ पर बहुत अच्छे मौसम में और अच्छे वातावरण में एस ऑफ स्पेड्स डिवीज़न के नेतृत्व में किया जा रहा है। और ये जो 15 राइडर हैं ये 16 कोर के सभी यूनिटों से इकट्ठा हुए हैं और पूरा द्रास तक का जो सिलसिला है और जो रास्ता है वो तय करके 2 दिन में जाएंगे और वहाँ पर 14 कोर और 15 कोर की भी जो टीम है वो वहाँ पर इकट्ठी होंगी, मिलेंगी और जो हमारे कारगिल के शहीद हैं और जो कारगिल की लड़ाई में जो भी शामिल हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जम्मू में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन है, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला भी शामिल रहे। वही प्रदर्शनकारियों का कहना था कि देश में हुए जासूसी कांड की सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच होनी चाहिए। So our peaceful protest has been stopped by police from proceeding towards Raj Bhavan. So हमारा ये peaceful protest था. We have been seeking high-level Supreme Court monitored investigation into the alleged snooping of telephone of opposition leader, constitutional functionaries, judges of the courts, the chief election commissioner, the heads of security forces, and many other top journalists, lawyers. So what kind of democracy? This is an assault on democracy. The Israeli company has said that they don't sell their product to any other organization except the government and its agencies. So it is the Modi government which is answerable and accountable. They should come out clear and they should hold investigation. We request the Honorable Supreme Court to have Supreme Court monitor investigation and tell them the Home Minister who is in charge of internal security should resign and step down. He should be asked to step down. So we shall press for this demand. We were proceeding towards Raj Bhavan. We have been forcibly stopped. We are a law-abiding party, so we have respected that, but we have been stopped forcibly. We continue our protest and we seek the demand, which is the demand of Congress Party and all opposition in the country today throughout the country. हो रहा है कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट यहाँ पे अपनी कड़ी में जम्मू शहर में पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, मीर साहब की लीडरशिप में सारे कांग्रेस के नेता वो कार्यकर्ता हूँ आज सड़कों पे रोज प्रदर्शन करने के लिए जिस ढंग से राइट टू प्राइवेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बड़े अच्छे दूर अंदेशी जो नेता थे उन्होंने हमें इनकॉर्पोरेट करके हक दिया और राइट टू प्राइवेसी खत्म करने का मोदी सरकार ने जो बेड़ा यहाँ पे उठाया बुलडोज करने का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में पूरी जांच यहाँ पे हो जिस ढंग से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बुलडोज यहाँ पे किया जा रहा है। और ये राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट था। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ऐसी जांच यहाँ पे होती है जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा कहीं पे हो, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे खतरा था? विपक्ष के चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे पत्रकार हो, बड़े बड़े दिग्गज लोग जो है इसके दायरे में यहाँ पे आके मैं समझता हूँ जिस ढंग से सरकारों का घराना उनको बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है, ये डेमोक्रेटिक
इंस्टीट्यूशन की हत्या यहाँ पे है, इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस में रोष प्रदर्शन करने के लिए राजभवन में जाके, ताकि राजभवन के माध्यम से गवर्नर साहब के जरिए प्रेसिडेंट इंटरवेन करे, हमारे लोगों के जज्बात को समझे। जम्मू कश्मीर आम अष्टवार रियासत यहाँ पे नहीं है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को गुस्सा यहाँ पे है, उसकी आवाज आज सड़क से आवाज सदन तक भी सुनाई दे, ताकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जज के निगरान में ये पूरी जांच। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के प्रेसिडेंट आर.के. भट्ट द्वारा की गई पत्रकार वार्ता कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर और लेफ्टिनेंट गवर्नर से लगाई गुहार की कश्मीरी पंडितों की एक कमेटी बनाई जाए, जिसकी अध्यक्षता स्वयं गृह मंत्री जी करे, ताकि किस तरह से कश्मीरी पंडितों की वापसी हो सके और जो भी कार्य हो उसमें कश्मीरी पंडितों की भी राय ली जाए। नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए बताया था। हम आज नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि अभी फिर हमारी आशाएं आपके सरकार के साथ जुड़ी हैं कि अब आप बिल्कुल देरी ना करें और कश्मीरी पंडित की वापसी को प्रूव करके दिखाएं। और इस कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए हम ये अपील करते हैं कि इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए और ब्लूप्रिंट बनाने से पहले कश्मीरी पंडितों की एक एपेक्स कमेटी गठित की जाए, जिसकी अध्यक्षता स्वयं गृह मंत्री जी करेंगे और तभी हमारा एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा कि कश्मीरी पंडित की वापसी कैसी होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी जो एलजी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें यह कहा गया था कि हम कश्मीरी पंडित की वापसी करेंगे, जहां हमने उसको वेलकम किया, वहीं पे एक ये चिंताजनक बात बन रही है कि इन्होंने कोई नई चीज़ नहीं कही। इन्होंने यूथ ऑफ सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी है, हम ये मांग रखते हैं कि कश्मीर जो भी जाना चाहेगा उसको एक जॉब ज़रूर मिलना चाहिए और जो ओवरेज सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी है उनको 1 साल का 1 लाख रुपए मुआवजा देके 32 साल का 32 लाख रुपए मुआवजा होना चाहिए, तभी ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। जम्मू एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के एसपी विनय शर्मा द्वारा की गई प्रेस वार्ता जम्मू में और दी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की जो कि ड्रग्स की तस्करी करती थी। सूचना मिलते ही उन्होंने सर्च अभियान जारी कर दिया और पता चला कि ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर ड्रग्स यहाँ लाते थे और कुछ लोग उन्हें आगे सप्लाई करते थे, जिनसे लगभग 14 करोड़ रुपए का माल पकड़ा और 3 लोगों को भी किया गया गिरफ्तार। इसके बाद एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स को एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पता चला जो कि बॉर्डर क्रॉस करवा के हिंदुस्तान की तरफ ड्रग्स पुश करते थे और भारत की तरफ से कुछ लोग ऐसे जो उस ड्रग को फिर आगे फर्दर सप्लाई करते थे। कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 पैकेट हीरोइन के जब्त हुए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 14 करोड़ के लगभग है। 19 तारीख को हमें एक स्पेसिफिक इतला मिली कि एक आदमी जिसका नाम नरेश कुमार है वो खोड़ एरिया से अखनूर की तरफ हीरोइन की कोई बड़ी कंसाइनमेंट लेके जा रहा है। उसकी स्कूटी का नंबर भी हमारे साथ शेयर किया गया। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की टीमें उन्होंने जगह जगह पे नाके लगाए और दौराने सर्च उस स्कूटी को जब हमने रोका, उसकी सर्च से हमें एक पैकेट हीरोइन का जब्त हमने किया, जिस पर बड़ा ख़ास किस्म का निशान था जो कि उसको अफ़गान ग्रेड हीरोइन की तरफ इशारा कर रहा था। जब उसकी फर्दर इंटरोगेशन की गई तो उसने बताया कि 2 लोग और ऐसे हैं जो इसी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का हिस्सा हैं और उनकी जानकारी में एक पैकेट और है जो अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चनिंग और इंटरोगेशन के दौरान वो हमें एक ऐसी जगह पे ले गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल पास, जहाँ से हमें एक पैकेट और हीरोइन का जब्त हमने किया। उस पर भी ख़ास किस्म का निशान लगा हुआ था जो कि अफ़गान ग्रेड हीरोइन की पहचान करवाता है। 2 पैकेट हीरोइन हमने जब्त किए हैं, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब उनकी फर्दर क्वेश्चनिंग की गई, उनका मोडस ऑपरेंडी हमने जो स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रग कार्टल्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के फेंस से वहाँ से पैकेट पार फेंकते हैं और ऐसी जगह पे छुपा देते हैं जहाँ से ये लोग जाके आगे वहाँ से कलेक्ट करके अपनी तरफ लाते अगर इनको कोई मौका मिलता। उससे पहले ही ये लोग गिरफ्तार हो गए और कुल मिला के हमें 2 किलो हीरोइन हमने जब्त की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 14 करोड़ रुपए है। इसमें NDPSA की स्पेसिफिक धाराओं में हमने पर्चा दे दिया है। इन्वेस्टिगेशन सुनील जसरोटिया साहब कर रहे हैं
हमें पूरी उम्मीद है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में फर्दर चेंज निकलेंगी और लोग जो इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा हैं बड़ी जल्दी गिरफ्तार होंगे। हमें पाकिस्तान की तरफ से सप्लाई करने वाले आदमी के कुछ डिटेल्स सामने आए हैं। कोशिश करेंगे हम एक्स्ट्राडिशन के तौर पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, लेटर रिगोटरी के प्रोसेसेस को यूज़ करके कोशिश करेंगे उनका भी इंडिया की तरफ प्रत्यर्पण का किसी तरह से व्यवस्था करवाएं। इसमें अगर इंटरपोल की अगर ज़रूरत पड़ेगी सहायता की, वो भी हम लेंगे। मैं यही बात एक बार इंग्लिश में दोहरा देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ पुलिस द्वारा ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम आवाम को पुलिस द्वारा मिठाई खिलाकर ईद की शुभकामनाएं दी गई। ये एक पीस और हार्मनी का मैसेज है, जिसमें पुलिस के साथ साथ हिंदू बरादरी के लोग भी हुए शामिल और मुस्लिम भाइयों को दी ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्टी ऑर्गेनाइज की है ईद मिलन का, तो क्या कहेंगे सर किस तरीके? ये हमने एक जो है वो कम्युनल हारमोनी के तौर पर ये ईद मिलन रखा था, जिसमें हर सेक्शंस के लोगों ने शिरकत की, क्योंकि आज कोविड का दौर था और उसमें जो लोगों के अंदर एक स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, उस वजह से जो है वो हायर अप्स की वजह से इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई ऐसा ओपन एरिया में मिनिमम लोगों को बुला के, रिप्रेजेंटेटिव्स जो आवाम के हैं उनको बुला के एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए और मैसेज दिया जाए कि जो यहाँ के लोगों ने जो कोऑपरेट किया इसमें कोविड के रिलेटेड, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और ये ईद मिलन जैसे त्यौहार हम बड़े तौर पर करते हैं, लेकिन क्योंकि आज कोविड चल रहा है तो उस वजह से जो है हमने ये लिमिटेड रखा। इसमें सिर्फ जो हर तबके के जो है रिप्रेजेंटेटिव ने शिरकत की। आज ईद उल अज़हा के मौके पे यहाँ पे पुलिस की तरफ से बिलखसूस SDPO साहब की रहनुमाई में SDM साहब और तहसीलदार साहब, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ हमारे ऑफिशियल्स हैं, यहाँ उन्होंने एक ईद मिलन रखा यहाँ शहीदी चौक के अंदर, और यहाँ हर तबका फ़िक्र के लोग जो हैं उनको यहाँ दावत देकर यहाँ एक मिसाल कायम कर दी और एक सेकुलरिज्म का जो है हमारे सामने एक अच्छा शगुन जा रहा है। मैं इस मौके पर तमाम उम्मत मुसलमा की तरफ से मैं SDPO साहब का, एडमिनिस्ट्रेशन का और यहाँ हिंदू बरादरी के जो हमारे भाई हैं यहाँ शामिल हुए हैं, हम इनका शुक्रिया अदा कर। जावेद जी, मैं सबसे पहले हमारे जो मीडिया हज़रात हैं मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो हर वक्त हमारे साथ होते हैं। उसके बाद जो हमारे SDPO मेंबर, SHO मेंबर, जिन्होंने ये पहली बार जिस दिन से ये चल रही है हमारी, लेकिन ये मेंबर में एक इतिहास में लिखा जाए कि SDPO साहब सलीम जाफरी साहब ने ये पहली बार मेंबर में हमारा गेट टुगेदर रखा। मैं मुबारकबाद देता हूँ SDPO साहब को, SHO साहब को कि जिन्होंने हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखने की ये इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। और सबसे पहले जो मैं हमारे BMO साहब जिनने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वो भी यहाँ पे आए हुए थे। तो बाकी पूरी हिंदू सनातन की ओर से मैं पूरे मुस्लिम भाइयों को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आए दिन GMC राजौरी में चोरी की वारदातें पेश आती रहती है। वही एक फिर से चोरी की वारदात जिसमें एक गरीब महिला का पर्स लूटकर 25,000 रुपए चोरी कर चोर हुए फरार। देखा जाए तो सिक्योरिटी व पुलिस के पुख्ता इंतजाम पर फिर भी इस प्रकार की वारदात पेश आई। इस पर हेल्थ विभाग व डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कड़े करने चाहिए इंतजाम और बिना किसी काम के ऐसे लोगों पर अंदर आने पर लगानी चाहिए रोक। बिना किसी काम अंदर आते हैं और इर्द गिर्द घूमकर लोगों के पैसों पर करते हैं हाथ साफ।
मेरा नाम है ताजिम। मेरा इधर बैग रखा हुआ था बच्चे के पास, तो दिन के कोई 12:30 का टाइम था। मैं इधर पानी लाने गई बाहर, तो पीछे से बैग चोरी हो गया। तो जब मैं वापस आई तो मैंने पूछा इधर बैग किसी ने उठाया, पूरा इधर वार्ड गड्ढा हो गया, तो बैग जो है नहीं मिला। फिर कोई घंटे के बाद इधर बाहर अंदर इधर देखने लगे तो उधर परली साइड में पड़ा हुआ बैग खाली मिला। उसमें 25,000 रुपया था और कुछ कार्ड थे और बच्चे के कुछ टेस्ट वगैरह थे उसमें डाले हुए। बैग खाली मिल गया। टेस्ट वगैरह उधर ही पड़े हुए थे। वो जहाँ ड्रेसिंग करते हैं ड्रेसिंग रूम के सामने बाहर पड़ा हुआ था। क्या चाहते हैं अब चोर कहाँ से देंगे पैसा, कहाँ से मिलेंगे चोर? डिस्ट्रिक्ट राजौरी के कोटरंका समोट एरिया में ईद के त्योहार पर सेना द्वारा मदरसे में पढ़ रहे बच्चों को मिठाई, स्टेशनरी व कोविड किट्स देकर इस त्योहार की दी गई शुभकामनाएं। इस तरह के काम से अमन व खुशियों को बढ़ावा मिलता है और इससे पता चलता है कि त्योहार खुशियों के साथ साथ अमन व भाईचारे का भी पैगाम लाती है। खेल कूद तो होना चाहिए, बट उसके साथ पढ़ाई का ध्यान होना चाहिए। नंबर पेपर के अंदर आप जो नंबर ले चुके, खास करके 10वीं 12वीं, कोई पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। घर पे अगर बोल रहे नहीं कि पढ़ाई बंद कर ले, तो आप लोगों को ना मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे जाके कोई अफसर बनूंगा, पुलिस बनूंगा, फौजी बनूंगा, IAS IPS बनूंगा, समझ गया ना? अगर आप लोग एक बंदा बन गया, फिर आपका पूरा परिवार है, कोई खानदान है, जो भी आपका आस-पास है, सब तारीफ करेंगे। ठीक है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब के लिए, चाहे हमारे लिए या जो भी दूर दराज से यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, हम सब के लिए बहुत ही एक खुशी का दिन है और एक हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छा खुशी पैदा हुई कि हमारे जो 60R नागा के नौजवान और हमारे CO साहब जो हैं हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारे लिए ईद के मौके पर, इतनी खुशी के मौके पर हम सब की खुशी को समझते हुए हमारे लिए जो ट्रॉफ़ी है वो भी लाए और उसके साथ साथ हम सब बच्चों के लिए मिठाई वगैरह भी लाए। और हम CO साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे दिल के अज़हार को, हमारे दिल की ख्वाहिश को अंजाम दिया। और हम ये उम्मीद करेंगे कि जो 60R नागा के जो नौजवान हैं और जितने भी आर्मी सिक्योरिटी के नौजवान हैं, CO साहब हैं, वो हमारे साथ हर एक मौके में जो है वो हमारा ख्याल रखेंगे। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के हरिपत्री तराल के लोगों ने R&B डिपार्टमेंट के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। लोगों का कहना था कि रोड की खस्ता हाली व पुल न होने की वजह से करना पड़ता है कई मुश्किलों का सामना। वही आज लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लगाई गुहार के इस ओर भी दिया जाए ध्यान और जल्द से जल्द हमारी इस समस्या का किया जाना चाहिए कोई समाधान। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। R&B और R&B मुस्पर साहब, सरपंच साहब, गुलाम गाने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम वन ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ हारीपारी गांव एंड आई बिलोंग टू शेख मोहल्ला। एक्चुअली सर जी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर हम बात करेंगे जो हमारे यहाँ पे रोड से एक्चुअली अगर आप देखेंगे उनकी क्या ड्रास्टिक हालत है, आपने वो जब आप वहाँ से आए आपने वो खुद देखी होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। ये कुछ महीनों की बात नहीं है, बहुत सालों से ऐसा कुछ चल रहा है। और अगर मैं बात करूंगा सर जी, आप यहाँ पे आपने पुल को भी आपने मुआयना किया तो आपने देखा जो यहाँ पे अथॉरिटीज़ है उन्होंने वो कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, वो कोई जो मतलब नेसेसरी स्टेप्स है वो नहीं ले रहे यहाँ पे। और मैं आपको बताना चाहूँगा सर जी कि हम एक्चुअली जो ये तबका है ये नीचे मतलब जो कम्युनिटी है उससे बिलोंग करता है। तो आई कैन से दैट मे बी दिस वन ऑफ द रीजंस कि इन पे ज़्यादा कुछ मतलब ये जांच नहीं दे रहे, ये ध्यान नहीं दे रहे। आपने वहाँ पे सर जी रोड्स देखे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दे आर अनेबल टू गो टू द स्कूल, दे आर अनेबल टू रीच टू देयर डेस्टिनेशंस। अगर सर बात करेंगे, अगर रात को कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो उनको यहाँ से मतलब हमें नियर अबाउट 1 किलोमीटर तक हमें उनको पैदल लेना पड़ता है। तो ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ऐसी कई प्रॉब्लम्स है। अगर आप देखोगे सर जी यहाँ पे खाली ये मोहल्ला नहीं है, इसको छोड़ के भी और कुछ मोहल्ले हैं, वहाँ पे टाइल्स लगाई गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो रोड्स है यहाँ पे बिल्कुल मैकडमाइज भी नहीं है।
तो क्या आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास मैं डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट के पास I am appealing to the district administration that necessary precautions should be taken, that they should come to know that how deeply these people are suffering due to the lack of communication infrastructure. Thank you. श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के सोगम कुपवाड़ा के लोगों ने पीएचई विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन और कहा पिछले कई दिनों से नहीं मिल पा रहा पीने का पानी। ईद के त्योहार पर भी पानी की कोई सुविधा नहीं। वहीं लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से लगाई गुहार के हमारी इस समस्या का किया जाए जल्द समाधान। दफ्तर छोड़ रहा, दफ्तर छोड़ रहा, मांग है हमारी, मांग है हमारी, मांग है हमारी, मांग है दफ्तर छोड़ रहा। जनाब आमत अलमदार जामिया मस्जिद ये मरकज सोगमिस मरकज तुम वो गोड आबत मरकज यह कस गवर्नमेंट से थोम ये गई पीएचई दफ्तर गई सारे तमाम मुलाजमन गई मगर सोन बूज ना अजुक तान कंसी ना बोजान ना वन तुम यीतन मौका वुचन कुन जाए आब गई 4 रेत टोटली आब ये सात गवर्नमेंटन सिर्फ सूज दोप तुम करो अग्रीमेंट जनाब कोर अग्रीमेंट सारी महलन मगर वुनकस वुचान आब रथ नोमुत 4 रेतन वोजमुत साढ़े कहीं त्रावान आब हंग मंगस मज खुदा रसूल सुन गवाह अगर अपुज वन साढ़ कह आब त्रावान कुन सात रेत त्रावान 15 दह त्रावान कहीं बज त्रावान आब ये बस 21 बज तक आब अत बज गो बंद आज गई 4 रेत टोटली आब आसनस 4 रेतन तीन आब तमाम पीएचई डॉक्टरस गई या ये मुलाजमन यम मुलाजिम ये नजदीक गांव भोजपुर ये वन अतुक अब्दुल रशीद ये मुलाजिम अल्लाह तला सतन अगर सह बोजान योर तमिस वन सह घर फिर बेत नान अलबत् अगर तमिस कह बोड़ मोहनी ब्रो कई गसान खड़ा तमिस जनाब गसान घर तमिस कत आब क्या वन तुंद खत आब मगर गरीब आवाम यमन आब वातान कहीं सोन मुतला ये कि कतो कम आब अगर 4 रेत गई वन अगर न वन ये पीएचई दफ्तर वनकस मांग पूर कर जनाब करो अमुक जिम्मेवार दी ये पीएचई दफ्तर पाइप कड़ित तेल पाइप कड़ित थो अग्रीमेंट कोरुक फीस। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।